अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 अब आपके स्क्रीन पे अब शुरू होती है। इस एग्जाम्पल में जो आगे क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े दूसरे अंदाज के हैं, थोड़े से मुश्किल होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं जो स्टेप वाइज है। पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है इसको थॉरोली पढ़ना। जो टेक्स्ट दी होती है, जो पैराग्राफ या जो पैसेज दिया होता है उसको थॉरोली पढ़ना, सबसे पहला हमारा स्टेप वही। तो ये आपके स्क्रीन पे इस वक्त है इसका पहला पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, जो पैसेज हमारे सामने है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ फिर इसको जल्दी जल्दी ही पढ़ूंगा, लेकिन जाहिर है जब आप एग्जामिनेशन में पढ़ रहे होंगे तो बहुत आराम से, बहुत ही समझ के, बहुत ही फोकस लगा के, बहुत दिल लगा के इसको पढ़ोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आपका पैसेज सामने होगा। फिर आप क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे सकते हो। तो मैं पढ़ूंगा यहाँ जल्दी जल्दी और आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। टेलीविजन Television became available in crude experimental forms in the late 1920s, but it would still be several years before the new technology would be marketed to consumers. After World War II, an improved form of black and white TV broadcasting became popular in the United Kingdom and the United States, and television sets became commonplace in homes, businesses, and institutions. During the 1950s, television was the primary medium for influencing public opinion. In the mid 1960s, color broadcasting was introduced in the US and most other developed countries. The availability of multiple types of archival storage media such as Betamax and VHS tapes, high-capacity hard disk drives, DVDs, flash drives, high-definition Blu-ray discs, and cloud digital video recorders has enabled viewers to watch pre-recorded material, such as movies, at home on their own time schedule. For many reasons, especially the convenience of remote retrieval, the storage of television and video programming now also occurs on the cloud, such as the video on demand service by Netflix. At the end of the first decade of the 2000s, digital television transmissions greatly increased in popularity. Another development was the move from standard definition television SDTV 576i with 576 interlaced lines of resolution and 480i to high definition television HDTV, which provides a resolution that is substantially higher. HDTV may be transmitted in various formats: 1080p, 1080i, and 720p. Since 2010, with the invention of smart television, internet television has increased the availability of television programs and movies via the internet through streaming video services such as Netflix, Amazon Video, iFlyer, and Hulu. In 2013, 79% of the world's households owned a television set. The replacement of early bulky high-voltage cathode ray tube (CRT) screen displays with compact, energy-efficient flat-panel alternative technologies such as LCDs, both fluorescent, backlit, and LED (OLED) displays, and plasma displays was a hardware revolution that began with computer monitors in the late 1990s. Most TV sets sold in the 2000s were flat panel, mainly LEDs. Major manufacturers announced the discontinuation of CRT, DLP plasma, and even fluorescent backlit LCDs by the mid 2010s. In the near future, LEDs are expected to be gradually replaced by OLEDs. Also, major manufacturers have announced that they will increasingly produce smart TVs in the mid 2010s. Smart TVs with the integrated internet and Web 2.0 functions became the dominant form of television by the late 2010s. Television signals were initially distributed only as terrestrial television using high-powered radio frequency television transmitters to broadcast the signal to individual television receivers. Alternatively, television signals are distributed by coaxial cable or optical fiber, satellite systems, and since 2000s via the internet.
Until the early 2000s, these were transmitted as analog signals, but a transition to digital television was expected to be completed worldwide by the late 2010s. A standard television set is composed of multiple internal electronic circuits, including a tuner for receiving and decoding broadcast signals. A visual display device which lacks a tuner is correctly called a video monitor rather than a television. तो स्टेप्स में जैसा कि आपको मालूम है, पहला पहला स्टेप है थारो स्टडी करना। इस जो आपको आपके सामने जो पैसेज होगा उस पैसेज को थारोली स्टडी करना, उसको अच्छी तरह से पढ़ना, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप जो होगा वो अभी मैं दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पे, जो डिटेल है स्टेप्स की। तो पहला स्टेप है रीड पैसेज थारोली, दूसरा स्टेप है शॉर्ट पॉज टू थिंक अबाउट द टाइटल एंड कंक्लूजन। तो दूसरे स्टेप में हम एक शॉर्ट पॉज लेते हैं जिसमें हम टाइटल और कंक्लूजन के बारे में देख सकते हैं। तो ये अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा। जाहिर है ये पैराग्राफ जो है टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन से मुतालिक है, तो इसका टाइटल बन सकता है एवोल्यूशन ऑफ टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एवॉल्व हुई है। दूसरा टाइटल इसी तरह से बन सकता है हाउ द टेक्नोलॉजी हाउ द टीवीज ऑफ टुडे और हाउ द टीवीज ऑफ टुडे हैव डेवलप्ड। इस तरह कुछ भी आप टेक्नोलॉजी, जाहिर है आप खाली टेलीविजन एंड देयर एडवांसमेंट ये भी लिख सकते हो। चेंजिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग टेक्नोलॉजी, कुछ भी किसी तरह से भी सेंस बना सकते हैं, लेकिन जोड़ना ये है कि टेलीविज़न के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। वो आप एक अंदाज़ा लगाने, शॉर्ट पास लेना है किस तरह से, मतलब ये टेलीविज़न से मुतालिक टेक्नोलॉजी, उन टेलीविज़न की एडवांसमेंट और इसकी मतलब इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो है उसके बारे में ये वैसे सारा का सारा है। और कंक्लूजन्स में भी यही है कि किस तरह से एडवांसमेंट के साथ साथ जो है नई चीज़ें डेवलप होती गई, नई चीज़ें आती गई, नई चीज़ें आ गई। टेलीविज़न कहाँ एक बहुत बड़ा सीआरटी का एक बड़ा यानी कैथोड रे ट्यूब का एक बहुत बड़ा स्क्रीन हुआ करता था, और आज जो है एक छोटा सा एलईडी का एक पैनल होता है जो दीवार के साथ चिपक के लगा रहता है। और कहाँ पहले टेलीविज़न के जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशन से ही ब्रॉडकास्टिंग होती थी, और कहाँ आज का इंटरनेट पर जो स्मार्ट टीवीज़ के ज़रिए हम टीवी या टेलीविज़न प्रोग्राम्स को वॉच करते हैं। तो ये कंक्लूजन में है कि कितना कहाँ से स्टार्ट हो गई थी इसकी टेलीविज़न टेक्नोलॉजी का बनना शुरू हो गया था, और कहाँ हम पहुँचे हैं कि आज इंटरनेट के ज़रिए से हम टेलीविज़न जो प्रोग्रामिंग या तो टेलीविज़न व्यूइंग जो है बिल्कुल ही रिवोल्यूशनाइज हो गया, चेंज हो गया। तो ये शॉर्ट पास करके हम ये इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस मैंने वो मल्टीपल चॉइस को थोड़ा एडवांस अंदाज में डाल दिया है, तो अब देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। बिलो और टेलीविज़न टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट्स, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये बिलो और टेक्नोलॉजी टेलीविज़न टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग बिकेम पॉपुलर, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इन मिड 60s कलर ब्रॉडकास्टिंग बिकेम पॉपुलर इन यूएस। तीसरा स्टेटमेंट टेलीविजन वाज इन क्रूड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म इन 1920s। चौथा स्टेटमेंट विद द एडवेंट ऑफ स्मार्ट टीवी द इंटरनेट टेलीविजन इज नाउ गेटिंग पॉपुलैरिटी। और पांचवा स्टेटमेंट
At the end of the first decade of 2000s, the digital television transmission gained popularity. जाहिर है ये A B C D E, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं A B C D E, और ये जो है इनका एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ इनकी टेक्नोलॉजी जो है आ गई, फिर उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई। तो 5 किस्म की स्टेटमेंट्स हैं 5 किस्म की टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये एक अनऑर्डर्ड है, तो आपने ऑर्डर में डालना है इनको और नीचे वही ऑर्डर फिर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स अबव, यानी कि इनको एक ऑर्डर में डाल के फिर वो ऑर्डर जो है आपने सेलेक्ट करना है। नीचे जो जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनमें से एक ही ऑर्डर करेक्ट होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो जाहिर है सबसे पहले जो था टेलीविजन क्रूड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में था, तो ये टेलीविजन पहले जो है आएगा सी। तो इसी से आपको अंदाजा लगेगा सी जो है सिर्फ डी ऑप्शन में मौजूद है। टेलीविजन क्रूड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में 1920s में था, तो आपके लिए ऑप्शन सी जो ये ऑप्शन ये जो सेलेक्टेड ऑप्शन डी बन सकता है। यानी कि अगर आपने चॉइस सेलेक्ट करनी है तो डी आ जाएगी, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट सी है, दूसरा स्टेटमेंट ए है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट ए ही है कि नहीं। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग बिकेम पॉपुलर। जाहिर है ये जो क्रूड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म था उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट ही आया। फिर उसके बाद बी, इन मिड 60s कलर ब्रॉडकास्टिंग बिकेम पॉपुलर इन यूएस। तो यूएस में मिड 60s में आ गया कलर टेलीविजन। तो फिर यानी कि बी। फिर है ई, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिकेड 2000 डिजिटल टेलीविजन ट्रांसमिशन गेंड पॉपुलरिटी। ज़ाहिर है 2000 के बाद ही ऐसा हुआ। और लास्ट में है डी, विद द एडवेंट ऑफ द स्मार्ट टीवी द इंटरनेट टेलीविजन इज नाउ गेटिंग पॉपुलर। तो ये आप लास्ट में है आज। तो जाहिर है ये डी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन डी है। तो ये अब आपके स्क्रीन पर लाया है मैंने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके डी। तो डी यहाँ पर सेलेक्टेड ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन अभी हम इस पर पहुँचे हुए थे, हमने जो मतलब देखा ऊपर से स्टडी किया इसको, तो स्टडी करके अंदाज़ा लगाया, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी था। तो डी को यहाँ मैंने टिक करके दिखाया करेक्ट ऑप्शन के तौर पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर अब आपके। मैच कॉलम ए रिकॉर्डिंग मीडिया विद द कॉलम बी प्रोवाइडिंग डेफिनेशन ऑफ दैट मीडिया। रिकॉर्डिंग मीडिया कॉलम ए में दिया हुआ है और उसकी वो किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कॉलम बी में दिया हुआ है। तो कॉलम ए और कॉलम बी ये दो हैं। पहला है फ्लैश ड्राइव्स। वन, फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स क्या होते हैं, ये यहाँ जो जितनी भी डेफिनेशन ए बी सी डी में जो डेफिनेशन दी हुई है जो इसके साथ मैच करती है वो हमने मैच करनी है। फ्लैश ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स मतलब ये जो पहला स्टोरेज विच इज़ नॉट ऑन वन मशीन, बट ये नहीं है। द मैग्नेटिक टैप ये भी नहीं है। मीडिया रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी ये भी नहीं। कंप्यूटर रिकॉर्डिंग मीडिया टेक्नोलॉजी यूजिंग फ्लैश मेमोरी ये है। वन आएगा डी के साथ। नंबर टू, डीवीडी। डीवीडी के लिए जो ए बी सी और ये सी ऑप्शन है, डीवीडी मीडिया रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। अब तीसरा है बीटा मैक्स। बीटा मैक्स के लिए ये है बी ऑप्शन, द मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टार्टेड बाय जापान, क्योंकि बीटा मैक्स जापान से ही शुरू हुआ था। और ये जो नंबर 4 है क्लाउड। क्लाउड रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लाउड ये है ए स्टोरेज, ए वाली स्टोरेज विच इज़ नॉट ऑन वन मशीन बट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट मीडिया। इंटरनेट पे ये कहीं भी स्टोरेज स्टोर किया जाता है कहीं भी, तो उसको क्लाउड स्टोरेज ही बोलते हैं। तो जाहिर है इसका मतलब है 1 डी के साथ, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ और 4 ए के साथ, 1 डी के साथ। 1 डी, यहाँ भी डी है, देखते हैं। अब 2 पे आते हैं। 2 सी के साथ, यहाँ भी 2 यहाँ भी सी, दोनों सी। और 3 बीटा मैक्स, 3 बी के साथ, 3 बी के साथ मैच होना, यहाँ ए है, इसका मतलब है ए है इसका ऑप्शन। और 4 जाहिर है ए के साथ ही है, तो 4 ए के साथ, तो ए है इसमें ऑप्शन। जब ए ऑप्शन है, ये उधर तो ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा उसमें नहीं है, ये बात बता दूं, ये क्या होते हैं, ये आपको जनरल पिछले नॉलेज होना चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो अब इनका इसका जवाब दे सकते हैं। अगर ये नहीं होगा पता ये क्या है क्या नहीं, यानी कि
इंग्लिश जो वोकेबलरी, इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी टर्म्स जो हैं उनको पता नहीं है, तो आंसर आप प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। इसमें पैराग्राफ पढ़ के ही सारा आंसर नहीं निकल सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो है इसमें हमारा आंसर ए है। तो मैं दिखाता हूँ अब आपको कि स्क्रीन पे हमने ए को सेलेक्ट किया है, ये टिक है ए के लिए, ये टिक करके आपके सामने स्क्रीन पर। और अब अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिलो आर टेलीविजन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट्स। तो ये टेलीविजन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीविजन इज हाई पावर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी टेलीविजन ट्रांसमिशन टू ब्रॉडकास्ट द सिग्नल टू इंडिविजुअल टेलीविजन रिसीवर्स। दूसरा स्टेटमेंट है टेलीविजन सिग्नल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कोएक्शियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा स्टेटमेंट एनालॉग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बिफोर 2000s रिप्लेस्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी आफ्टर 2000s। चौथा स्टेटमेंट है अ विजुअल डिस्प्ले device which lacks a tuner is correctly called a video monitor rather than a television. So select the combination of true false groups which is according to the statements above। तो मतलब इनमें से ढूंढना आपने हमने, तो ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स उसी तरह से फिर हमने यहाँ ग्रुप को सेलेक्ट करना है। ए में आता है ए फॉल्स, ए यानी कि ए फॉल्स अगर है तो टेरेस्ट्रियल टेलीविजन इज हाई पावर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी टेलीविजन ट्रांसमिशन नहीं है, ये गलत, ये ए फॉल्स नहीं है, ए एक्चुअली ट्रू है। तो ए ट्रू है तो फिर आएगा सी और डी में से एक स्टेटमेंट। तो आते हैं बी पर, टेलीविजन सिग्नल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड कोएक्शियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। एक्चुअली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आज भी होते हैं कोएक्शियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। तो ये बी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो बी यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, सी वाला भी फॉल्स, डी वाला भी, यानी कि ये यहाँ दोनों जगह फॉल्स है। तो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, एनालॉग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बिफोर 2000 प्लेस्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी आफ्टर 2000s। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सी ट्रू है, तो सी यहाँ नीचे फॉल्स है, इसका मतलब है सी करेक्ट ऑप्शन है। अब डी को देखते हैं, अ विजुअल डिस्प्ले डिवाइस विच लैक्स अ ट्यूनर इज करेक्टली कॉल्ड अ वीडियो मॉनिटर रादर देन अ टेलीविजन। तो ये भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर जो है वो है सी। तो सी को हमने टिक करना है, ये है आपके स्क्रीन पर टिक करके आप। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Column A shows technology in abbreviation used in televisions and computer monitors, and column B provided full form of the technology. Column A में abbreviation में लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी कौन सी है, कॉलम बी में लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म। तो देखते हैं हम, OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। कॉलम ए में ये दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो कॉलम ए में LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, ये एब्रीविएटेड फॉर्म। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिसेंट टू द अर्लीस्ट। तो ये आपको जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, जब हमने ऊपर जो पढ़ा हमने टेक्नोलॉजी, उसमें हमने पता किया कि कौन सी टेक्नोलॉजी पहले आई, फिर बाद में कौन सी आई, फिर बाद में कौन सी आई। ये पैराग्राफ है, इसमें आता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी आई कौन सी नहीं आई। तो हम यहाँ इस पैराग्राफ में हमने पता किया, तो पता चला कि जो टेक्नोलॉजी पहले आई वो थी CRT के बाद LCD आया, LCD के बाद LED आया, और अब OLED चल रहा है, OLED। तो ये क्योंकि मोस्ट रिसेंट ये है OLED, क्योंकि हमने मोस्ट रिसेंट से शुरू करना है, तो पहला नंबर पर ये आएगा, मतलब 1, फिर उसके बाद LEDs यानी 1 3, फिर LCD 2 और CRT 4, यानी 1 3 2 4 हमारा ऑप्शन यही है। 1 ये डी है, 1 3 2 4 ये है डी ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 3 2 4। सेलेक्टेड ऑप्शंस में से यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये 1 3 2 4, ये है 1 3 2 4, ये आंसर है आपके स्क्रीन पर 1 3 2 4। तो अगला क्वेश्चन ये 5वां क्वेश्चन है,
फिल द ब्लैंक्स बिलो बाय दीज वर्ड्स, लीप्स, एडवेंट, कन्वर्ज्ड, इन्फ्लुएंशियल। इन वर्ड से फिर ब्लैंक्स फिल करने हैं हमने। तो पहले इसको पढ़ेंगे हम, ये पूरा पैराग्राफ क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा। और नीचे फिर सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन विच द वर्ड्स अबव कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स इन सीरियल ऑर्डर एज नंबर्ड। तो जैसे नंबर है, पहली ब्लैंक का नंबर 1 है, दूसरे का नंबर 2, तीसरे का नंबर 3 और चौथा ये 4 है। 1 2 3 4, ये ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2 3 4। और यहाँ ये इस ऑर्डर में हैं 1 2 3 4, और पहले में कौन सा वर्ड आएगा, दूसरे में कौन सा वर्ड, तीसरे में कौन सा वर्ड, चौथे में कौन सा वर्ड। तो इसी तरह से हमने ऑप्शन फिर सेलेक्ट करना है। The television started in its development especially after World War II when the television broadcast was लीव्स तो नहीं आएगा, एडवेंट भी नहीं आएगा, कन्वर्ज्ड was converged in formulating public opinion नहीं आएगा, influential आएगा, influential in formulating public opinion with the introduction of color television in the mid 1960s and appearance of pre-recorded videos, the television technology started fast लीप्स फॉरवर्ड, लीप्स ही आएगा, लीप्स फॉरवर्ड, एडवेंट फॉरवर्ड ये भी आ सकता है, कन्वर्ज नहीं आ सकता, इन्फ्लुएंशियल नहीं आ सकता। देखते हैं आकार। देन केम द डिजिटल टेलीविजन रिप्लेसिंग एनालॉग टेक्नोलॉजी गिविंग राइज टू द मॉडर्न era of television when computer and television has almost converged। यहाँ तो आएगा ही आएगा converged, लीप्स भी नहीं आएगा, एडवेंट भी नहीं आएगा, इन्फ्लुएंशियल भी नहीं आएगा, converged when television broadcast has started on the internet। द लीव्स ऑफ नहीं आएगा, एडवेंट ऑफ, यहाँ एडवेंट आएगा, तो जाहिर है कि फिर यहाँ लीव्स ही आएगा, यहाँ 2 पे लीव्स, तो यहाँ एडवेंट ऑफ एच डी टी वी हैज़ फर्दर एडवांस्ड बिकॉज इंटरनेट हैज़ इम्प्रूवड इन स्पीड एंड क्वालिटी। तो हमारे पास ऑप्शंस आ गए, पहले में इन्फ्लुएंशियल आएगा, दूसरे में लीव्स आएगा, तीसरे में कन्वर्ज्ड और चौथे में एडवेंट। तो पहले में इन्फ्लुएंशियल, फिर उसके नेक्स्ट लीव्स, तीसरे में कन्वर्ज्ड और चौथे में एडवेंट, मतलब ए ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड ऑप्शन है। तो ये सेलेक्टेड ऑप्शन जो है ये आपके स्क्रीन पर। तो ये इस तरह से हमने सारे ऑप्शंस का कर दिए। 5 ही क्वेश्चंस थे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं क्योंकि एक में कितने ऑप्शंस हैं, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चंस हैं। ऑर्डर करना, प्रॉपर ऑर्डर में करना और थोड़ा सा मुश्किल था ये, इसलिए इसमें 5 ही ऑप्शंस रखे मैंने ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इस तरह से आपका ये जो तीसरी एग्जांपल भी ख़त्म होती है। हमने इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो लगभग सारे के सारे एमसीक्यूज से, बल्कि हैं ही ये एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ज़रिए ही इनको सेलेक्ट किया, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। ये पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब आपके स्क्रीन पर सीधे नज़र आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल ही है, इसमें भी हमने ए को सेलेक्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन में डी को सेलेक्ट किया, सेकंड क्वेश्चन में ए को सेलेक्ट किया, थर्ड क्वेश्चन में सी को सेलेक्ट किया, फोर्थ क्वेश्चन में डी को सेलेक्ट किया और फिफ्थ क्वेश्चन में फिर ए को सेलेक्ट किया हमने। ये 5 के 5 क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर हमने किए, सॉल्व किए। लेकिन ये सॉल्व तब होते हैं जब आपको में जो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब आपको तो उतनी सी इंग्लिश डेवलप होगी, और दूसरी बात यह है कि आप फोकस करते हो, जो भी आपके सामने पैसेज पड़ा हो उस पर अच्छी तरह से गौर करोगे तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इस पैराग्राफ को मैंने इस पैसेज को मैंने खास करके टेक्नोलॉजी से ले लिया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टेक्नोलॉजी पर से भी पैराग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि एमसीक्यूज जो हैं, जो कम्प्लेक्स किस्म के थोड़ा और मतलब मिक्स करके क्वेश्चंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल करके, तो ऐसे भी तरीका है यूज़ करने का। और ये जो हायर किस्म के एग्जामिनेशंस होते हैं वो इसमें ये टफ थोड़ा सा दिया जाता है, तो आपको वैसे अंदाज़ा होना चाहिए ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का, एमसीक्यूज को तैयार करने का। तो इसके साथ ही पैसेजेस का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इसमें हेल्प हो गई है। तो ध्यान रखिए कि आप
इसको 2-3 बार रिपीट से देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है जो पैसेज पे होता है।